my channel. My name is Ankita and I'm going to explain you line by line for biology NCERT. So in my previous video, I have already explained the two topics. That is, I have explained till the diseases which is caused by bacteria. So in today's video, we have to start from the diseases which is caused by viruses. If you have not seen the video, you may seen that and then continue and join this video. Okay. So today we have to start from those diseases which is caused by viruses. Look, firstly, I would like to make you revise the things that what we have studied in the last video. That was what are the diseases which is caused by bacteria. Bacteria कौन कौन सी disease cause करता है? The very first is typhoid, right? Second one is pneumonia. Third is dysentery. Then plague and then diphtheria. These are the 5 diseases which is caused by bacteria which is given in NCERT. Okay, so now today we have to start with the disease which is caused by viruses. Viruses क्या है? Viruses again a pathogen, right? So many viruses also cause diseases in human beings. Like rhinoviruses represent one such group of viruses which cause one of the most infectious human ailment, the common cold. So the disease is the common cold. Common cold is caused by a virus and the name of virus is rhinovirus. Alright. So common cold is basically caused by the virus named rhinovirus and they infect the nose and respiratory passage but not the lungs. Look, I have explained you that in pneumonia the lower respiratory tract is affected. Lower respiratory tract क्या होता है? हमारे nose, हमारे जो nostrils होते हैं as well as जो हमारा nasal passage होता है वो क्या होता है? That is upper respiratory tract. Whereas this trachea, this bronchus and bronchiole further as well as primary, secondary, tertiary and last alveoli. So all these are the part of the lower respiratory tract. So there are two terms, that is one is upper respiratory tract, upper respiratory tract. So upper respiratory tract जो होता है वो किस में अफेक्ट होता है? कॉमन कोल्ड में. आपने नोटिस किया होगा कॉमन कोल्ड में क्या होता है? वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली because of the mucus which is present in our nasal passage, right? So that is the infection of the upper respiratory tract, right? Whereas if I talk about the lower respiratory tract कहाँ से कहाँ तक होता है? Trachea to alveoli. So lower respiratory tract जो होता है that is it is infected in लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किसमें इन्फेक्ट होता है? दैट इज इफेक्टेड न्यूमोनिया. करेक्ट. तो हमें इतना तो याद रहता है कि जो न्यूमोनिया होता है उसमें हमारे एल्वेलाई जो होते हैं लंग्स के वो इफेक्ट होते हैं, राइट? एल्वेलाई जो होते हैं लंग्स में उसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाता है. करेक्ट. बट आपसे क्वेश्चन किस फॉर्म में फ्रेम हो सकता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बताओ किसमें इन्फेक्ट होता है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किसमें इन्फेक्ट होता है? तो अपर जो होता है, अपर मतलब दीज नॉस्ट्रल्स एज वेल एज नेसल पैसेज, तो वो किसमें इफेक्ट होता है? कॉमन कोल्ड में. वेराज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया? एल्वेलाई एंड ऑल. सो ये किसमें इफेक्ट होता है? न्यूमोनिया में. करेक्ट. So this name is important that common cold is the disease which is caused by virus, right? Whereas what's the name of the virus? That is rhinovirus. Now they infect the nose and the respiratory passage. So which organ or which part of the body is affected? So basically nose as well as the respiratory passage. Respiratory passage क्या है? Basically nasal passage, but not the lungs. So this is most important thing that common cold में lungs affect नहीं होते हैं, lower respiratory tract infect नहीं होता है, only upper respiratory tract is infected, that is your nose as well as your respiratory passage. Correct. The common cold is characterized by nasal congestion and discharge, sore throat, hoarseness. अब मैंने बताया था आपको किसी भी डिजीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है. पहला डिजीज का नेम, राइट? देन विच पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिजीज, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट पैथोजन, विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज इन्फेक्टेड. सो यहाँ पे कौन सा बॉडी है? बॉडी का ऑर्गन दैट इज नोज एज द रेस्पिरेटरी पैसेज. देन नेक्स्ट इज what the symptoms, how the doctor will able to recognize. So symptoms क्या क्या होते हैं? nasal congestion हो जाता है, right? discharge and discharge. So nasal congestion मतलब क्या होता है? the mucus is present in the nasal passage, right? second क्या हो जाता है? sore throat हो जाता है, गला बहुत खराश हो जाता है. hoarseness, cough, headache, cough or sneezes of an infected person are either okay. So headache, tiredness. So these are basically 6 symptoms ऑफ द कॉमन कोल्ड. क्या क्या हो जाता है कॉमन कोल्ड में? नेसल कंजेशन होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, राइट? सोर थ्रोट हो जाता है, हॉर्सनेस होती है, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस. रादर नॉर्मली कॉमन कोल्ड सबको होता है, सो यू कैन इवन राइट इट डाउन बाय योरसेल्फ आल्सो. नाउ
दिस टायर्डनेस, ये जो फीवर हल्का सा होता है, ये जो हेडेक वगैरह होता है, ये कितने दिन तक लाई करता है? सो इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days. कितने दिन तक लाई करता है? 3 to 7 days. इसलिए से बोलते हैं कि इवन इफ यू डोंट टेक द मेडिसिन, स्टिल आफ्टर 1 week कॉमन कोल्ड क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है, राइट? सो वाई? बिकॉज इट लास्ट मैक्सिमम फॉर 3 to 7 days. नाउ ड्रॉपलेट, अब व्हाट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज, कैसे फैलती है डिजीज? सो ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ और द स्नीजेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर ईदर इनहेल्ड डायरेक्टली or transmitted through the contaminated objects such as pen, book, cups, doorknobs, computer keyboards or mouse, etc. and cause infection in a healthy person. So basically ये डिजीज़ कैसे ट्रांसफर होती है? कॉमन कोल्ड हम सबको पता है. इफ़ एनी इन्फेक्टेड पर्सन विल स्नीज and those droplets is present in the air, if a healthy person will inhale it, then that person will get infected. करेक्ट. तो ये कैसे फैल रही है? बेसिकली एयर ड्रॉपलेट्स से. ये किससे फैलती है? द ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, करेक्ट, उससे फैलती है. या उस इन्फेक्टेड पर्सन ने कहीं पे स्नीज किया तो वो ड्रॉपलेट्स अगर किसी चीज़ के ऊपर प्रेजेंट है, उस चीज़ को अगर किसी हेल्दी ह्यूमन ने यूज़ किया तो क्या हो जाएगा? ये इन्फेक्शन फैल जाएगा, करेक्ट. सो बेसिकली द ड्रॉपलेट्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल. तो ये बीमारी, ऐसी बीमारी जो हवा से फैलती हैं, दैट ट्रांसफर थ्रू द एयर, आर कॉल्ड एज एयरबॉर्न डिजीज. सो आपसे पूछा जाता है कि कॉमन कोल्ड कैसे स्प्रेड होता है? सो इट इज स्प्रेड थ्रू द ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. और ये कैसी डिजीज होती है? सो इट इज एयरबॉर्न डिजीज, करेक्ट. सो आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट में क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि कॉमन कोल्ड डिजीज़ है, कौन कॉज करता है? वायरसेस कॉज करते हैं. कौन सा वायरस? रीनो वायरस कॉज करता है, राइट. कौन सा पोर्शन इफेक्ट होता है? तो इट इन्फेक्ट ओनली नोज एज वेल एज द अपर रेस्पिरेटरी पैसेज, राइट, बट नॉट द लंग्स. सो दिस इज स्टार पॉइंट कि लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता. उसके बाद इसके सिम्टम्स याद रखने, कितने दिन तक लाई करता है? 3 to 7 days तक, राइट. एंड इट इज़ अ एयरबॉर्न डिजीज, करेक्ट. दैट इज इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू द ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, राइट. ओके. देन वायरसेस बाकी भी डिजीज़ कॉज करते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एक दी हुई है. नेक्स्ट पैथोजन कौन सा हो गया? हमने बैक्टीरिया डिजीज पढ़ ली, दैट डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया. सेकंड हमने वायरसेस पढ़ ली. थर्ड क्या है आपका? द थर्ड डिजीज इज कॉज बाय प्रोटोजोअन. तो प्रोटोजोअन क्या है? प्रोटोजोअन इज अगैन अ पैथोजन, करेक्ट. तो आपकी डिजीज क्या है? मलेरिया. मलेरिया क्या है? डिजीज का नाम है. इसको कौन कॉज करता है? कौन सा पैथोजन कॉज करता है? प्रोटोजोअन. उस प्रोटोजोअन का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम, करेक्ट. Alright, so some of the human diseases are caused by protozoan too. You might have heard about the malaria, a disease men has been fighting since many years, right? Plasmodium, a tiny protozoan. तो plasmodium क्या है? plasmodium basically नेम है उस प्रोटोजोन का जो डिजीज कॉज कर रहा है. कौन सी? मलेरिया, राइट. तो प्लाज्मोडियम क्या है? अ टाइनी प्रोटोजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज, राइट. डिफरेंट स्पीशीज. अब देखो प्लाज्मोडियम जस्ट लाइक डॉग, इफ यू टेक द एग्जांपल फॉर डॉग, तो डॉग की क्या होती है? काफ़ी सारी स्पीशीज होते हैं. डॉग इज अ स्पीशीज बट उसकी काफ़ी सारी फर्दर वेराइटी होती है, करेक्ट. कौन कौन सी होती है? जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ वी हैव लैब्रा, राइट, और वी हैव एग्जांपल ऑफ जर्मन शेफर्ड, और वी हैव एग्जाम्पल बुलडॉग. सो ये क्या है? ये सब अलग अलग वेराइटीज़ हैं. किसकी हैं? डॉग की ही हैं. ऐसे ही प्लाज्मोडियम जो होता है उसकी भी अलग अलग क्या होती है? वेराइटीज़ होती है, अलग अलग स्पीशीज़ होती है. कौन कौन सी स्पीशीज़ है? पी वाइवेक्स, पी मलेरिया एंड पी फेल्सीपेरम. रिमेंबर दीज नेम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट. कि प्लाज्मोडियम की कौन कौन सी स्पीशीज़ होती हैं? तो 3 स्पीशीज़ होती हैं. पहला पी वाइवेक्स, पी मलेरिया, पी फेल्सीपेरम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रेम होता है कि सबसे फेटल मलेरिया कौन सी स्पीशीज़ कॉज करती है प्लाज्मोडियम की? तो मोस्ट मेलिग्नेंट या मोस्ट फेटल जो टाइप का मलेरिया होता है, सो दैट इज कॉज्ड बाय पी फेल्सीपेरम, राइट. इवन इसमें क्या हो जाती है? डेथ भी हो जाती है. तो यहाँ पे लिखा है that these plasmodium, these are 3 different species of plasmodium, they are responsible for different type of malaria. Of these, malignant malaria caused by plasmodium falciparum is the most serious one and can even be fatal. So this is again important question कि most malignant type का malaria किससे, कौन से species से cause होता है? That is P. falciparum, right? ओके. नेक्स्ट क्या दिया आपको एनसीईआरटी में? दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. कि अभी जो प्लाज्मोडियम है जो डिजीज कॉज कर रहा है मलेरिया, उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, ठीक है. तो पहले हम इसे पढ़ेंगे किससे? इस डायग्राम से, एंड देन वी विल रीड दैट. ओके. अब डायग्राम से पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? डायग्राम से सो दैट यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली एंड देन वी विल स्विच टू द पैरा. ओके. ऑलराइट. सो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? When the mosquito bite another human, sporozoids are injected with bite. देखो क्या होता है, आपका जो प्लाज्मोडियम होता है, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे. पहला क्या है?
पहला है यहाँ पे पैथोजन, करेक्ट। पैथोजन कौन है? जो डिजीज कॉज कर रहा है। कौन डिजीज कॉज कर रहा है? हु इज कॉजिंग द डिजीज ओवर हियर? ऑफ कोर्स द डिजीज इज कॉज्ड बाय, इट इज कॉज्ड बाय पैथोजन नेम प्लाज्मोडियम, करेक्ट। सो प्लाज्मोडियम यहाँ डिजीज कॉज कर रहा है, ऑलराइट। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? वेक्टर कौन है? वेक्टर मतलब इस प्लाज्मोडियम को कैरी कौन कर रहा है? तो यहाँ पे वेक्टर कौन होता है? फीमेल एनाफिलिस। फीमेल एनाफिलिस रिस्पॉन्सिबल होती है, रिमेंबर मेल नहीं होता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो ये क्या करती है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ये बेसिकली कैरी करती है किसको? प्लाज्मोडियम को। और क्या करती है? व्हेन इट सक द ब्लड देन इट रिलीजेस दिस प्लाज्मोडियम इनटू द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, करेक्ट। ओके, सो क्या होता है? देखो जैसे ये कोई मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, उसने क्या किया? किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर जाके बैठी होगी एंड उसका ब्लड सक किया। ब्लड सक किया तो उस इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में क्या होगा? उस इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में ऑलरेडी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। वो प्लाज्मोडियम किसकी बॉडी में एंटर कर गया? इस फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। एंड जब ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो किसको? एक हेल्दी पर्सन को बाइट कर रही है, तो ये देखो ये रिलीज कर रही है इसकी बॉडी में, क्या रिलीज कर रही है? स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स होता क्या? व्हाट आर स्पोरोजोइड्स? देखो पहले कुछ चीज समझो, देयर आर फ्यू पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट्स हैं? आपको पता होना चाहिए पहले कि जो प्लाज्मोडियम, जैसे हमारी अगर ह्यूमन की अगर हम बात करें, सो हमारे ह्यूमंस में क्या होता है? वी आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ। लाइक वी यूज टू बी, एक किसी टाइम पे तो हम सिंगल सेल भी रहे होंगे, करेक्ट। फिर हमारा फ्यूजन हुआ होगा, किससे? स्पर्म के साथ फ्यूजन हुआ होगा। देन जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ होगा। फिर जाइगोट बेसिकली 2 सेल स्टेज, देन 4 सेल स्टेज, करेक्ट, एंड सो ऑन बना। फिर फीटस बना, फीटस से फाइनली चाइल्ड, एंड आफ्टर चाइल्ड वी कन्वर्ट इनटू दी, नाउ वी बिकम टीनेज एंड देन वी बिकम एडल्ट्स। तो क्या होता है? हमारी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। वी हैव डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस इन आवर लाइफ, करेक्ट। ऐसे ही जो प्लाज्मोडियम होता है इसकी भी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। अब इसके स्टेजेस क्या होते हैं? पहले जैसे आपसे पहले क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है कि ये जो पैथोजन है दैट इज प्लाज्मोडियम, वो ह्यूमन की बॉडी में किस स्टेज पे एंटर करता है? तो किस स्टेज पे एंटर करता है? स्पोरोजॉइड। स्पोरोजॉइड इज द नेम ऑफ दैट स्टेज, जिस स्टेज पे वो एंटर करता है किसकी बॉडी में? ह्यूमन। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है? दैट विच स्टेज इज इन्फेक्शियस स्टेज? कौन सी स्टेज है जो इन्फेक्शियस है? मतलब हम ह्यूमंस के लिए कौन सी स्टेज है प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्शन कॉज करती है? तो इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी है प्लाज्मोडियम की? दैट इज स्पोरोजॉइड्स, करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि जब फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट करती है किसी हेल्दी ह्यूमन को तो उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम को रिलीज करती है, और वो प्लाज्मोडियम अपनी कौन सी लाइफ, उसकी लाइफ की कौन सी स्टेज में होता है? स्पोरोजॉइड स्टेज में होता है। तो प्लाज्मोडियम एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइड। तो इन्फेक्टेड स्टेज कौन सी होगी ह्यूमन के लिए? स्पोरोजॉइड्स, करेक्ट। ओके, अब जब ये स्पोरोजॉइड्स बॉडी में एंटर करते हैं तो उसके बाद वो कहाँ एंटर करते हैं? दे गो इनटू द लिवर। वो लिवर में जाते हैं। लिवर में जाने के बाद क्या करते हैं? लिवर के सेल के अंदर वो अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैरासाइट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइड्स रीच द लिवर थ्रू द ब्लड। अब लिवर तक कैसे पहुंचे हैं वो? ऑफकोर्स पहले फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ने क्या किया? इसको बाइट किया तो ये स्पोरोजॉइड्स ब्लड में गए, ब्लड में बेसिकली फ्लो करते करते लिवर में पहुंच गए, करेक्ट। लिवर में जाने के बाद उन्होंने लिवर के सेल के अंदर क्या किया? रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, राइट। तो ये देखो आगे क्या लिखा है? द पैरासाइट रिप्रोड्यूस। पैरासाइट कौन है यहाँ पे? दैट इज प्लाज्मोडियम। कौन है पैरासाइट यहाँ पे? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम यहाँ पे क्या कर रहा है? प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूसेस asexually in the liver cells, bursting the cell and releasing into the blood। तो क्या करता है ये? बेसिकली लिवर सेल मान लो, करेक्ट। ये प्लाज्मोडियम इसके अंदर चला गया। अब क्या करेगा? वो रिप्रोड्यूस करेगा, अपने नंबर को इसमें इंक्रीज करेगा। जब नंबर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो जाएंगे तो फाइनली क्या होगा? लास्ट में ये सेल बर्स्ट हो जाएगा। ऑफकोर्स इट विल बर्स्ट, और बाकी प्लाज्मोडियम क्या होंगे? सबके सब बाहर आ जाएंगे। अभी जो बाहर आ चुके हैं ये क्या करेंगे? दूसरे जो नए सेल्स हैं उनको जाके इफेक्ट करेंगे, और सिमिलरली इस तरीके से अपने नंबर को रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। अब क्या होता है? अभी देखो ये मैच्योर फॉर्म में है, ठीक है। मैच्योर फॉर्म में इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? जब एक ही पेरेंट सेल जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है किसमें? 2 डॉटर सेल में। फिर वो 2 डॉटर सेल फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं 4 डॉटर सेल्स में। तो ये क्या होता है? दिस इज काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, करेक्ट। रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या होता है? एसेक्सुअल।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है एज वेल एज फ्यूजन होता है। सो गैमेट का फॉर्मेशन एज वेल एज फ्यूजन होता है किसमें, सेक्सुअल में। ए सेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट की नीड होती है, ओनली सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। वही क्या करता है, स्प्लिट हो जाता है इंटू 2 डॉटर सेल, देन 2 into 4। तो अभी क्या करे प्लास्मोडियम, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 एंड सो ऑन, मतलब सिंगल पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द नंबर। तो क्या हो गया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगैन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है, दैट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लास्मोडियम, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लास्मोडियम का कहाँ पे होता है, किसकी बॉडी में होता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की बॉडी में होता है, ह्यूमन। सो दैट इज इनसाइड द ह्यूमन बींग, क्योंकि ह्यूमन बींग के क्या लिवर सेल के अंदर वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, कैसे, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, करेक्ट। ओके, अब जब ये रिलीज हो जाता है, जब ये सेल बर्स्ट होता है ना, तो रिमेंबर ये सेल जब बर्स्ट होता है तो प्लास्मोडियम के तो बाकी सारे मेंबर्स बाहर आ ही रहे हैं, इसके साथ साथ एक केमिकल भी बाहर रिलीज होता है, उसका नाम क्या होता है, हीमोजोइन, करेक्ट। और ये जो केमिकल होता है हीमोजोइन, ये टॉक्सिक होता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दी फीवर इन दी मलेरिया। सो मलेरिया में जो फीवर आता है, रीअकरिंग फीवर, मतलब थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद जो फीवर आता है वो क्यों आता है, बिकॉज ऑफ दिस केमिकल, टॉक्सिक केमिकल कॉल्ड एज हीमोजोइन, जो कब रिलीज होता है, जब ये सेल बर्स्ट होता है, करेक्ट। अब ये सेल क्या हो चुका है, बर्स्ट हो चुका है, राइट। आफ्टर दैट अब क्या करता है, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन दी रेड ब्लड सेल्स। तो कहाँ पे, ये आपसे पूछा था, एसेक्सुअली किसकी बॉडी में होता है, ह्यूमन बींग की बॉडी में होता है। ह्यूमन बींग में भी कहाँ होता है, तो ह्यूमन बींग के भी आरबीसीज में होता है। ह्यूमन बींग की आरबीसीज में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, करेक्ट। बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड कॉजिंग द साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। तो ये जो फीवर आ रहा है, कॉजिंग द फीवर, ये फीवर किस लिए आ रहा है, बिकॉज ऑफ हीमोजोइन। सो दिस फीवर इज बिकॉज ऑफ हीमोजोइन, करेक्ट। क्योंकि जब ये सेल बर्स्ट कर रहा है तो सेल के साथ साथ बर्स्ट करने के साथ प्लास्मोडियम तो बाहर आ ही रहा है, प्लास्मोडियम के साथ साथ कुछ केमिकल भी बाहर आ रहा है, और उस केमिकल को अपन क्या बोलते हैं, हीमोजोइन, विच इज रिस्पॉन्सिबल कॉजिंग द फीवर एंड अदर सिम्टम्स। रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट द न्यू। अब जो रिलीज हुए हैं ये वाले पैरासाइट, ये क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे बाकी सारे आरबीसीज को जाके, करेक्ट। देन क्या होगा, इसके बाद अब कौन सी स्टेज स्टार्ट होती है, जब ये जो प्लास्मोडियम है ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, करेक्ट। गैमेट्स का जो फॉर्मेशन करते हैं उसको उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गैमेटोसाइट्स। तो ये भी कहाँ पे होता है, ये भी ह्यूमन बींग की आरबीसीज में ही होता है। अब आप बोलोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी, इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो टेक्स प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बींग, नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन मतलब दिस इज ओवम, करेक्ट, दिस इज स्पर्म एंड इफ बोथ गेट फ्यूज एंड फॉर्म द जाइगोट, अगर जाइगोट बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन की बॉडी में आरबीसीज के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ओनली गैमेट इज फॉर्म, फ्यूजन नहीं होता यहाँ पे, रिमेंबर ओनली गैमेट फॉर्म, राइट, नॉट फ्यूज। ह्यूमन बींग की बॉडी में फ्यूजन नहीं होता है, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि ह्यूमन बींग की बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ओनली क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रिपरेशन हो रही है, प्रिपरेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, वेयर आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द, सो इट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल एनाफिलिस, करेक्ट। तो अब क्या होता है, अभी आरबीसी है, आरबीसी के अंदर क्या करता है, ये जो प्लास्मोडियम होता है वो अपने गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट्स। सो दीज गैमेट्स आर कॉल्ड एज गैमेटोसाइट। तो आपसे पूछा जाता है कि गैमेटोसाइट किसकी बॉडी के, अगैन ये इंपॉर्टेंट है कि गैमेटोसाइट किसकी बॉडी के अंदर फॉर्म होता है, तो इट इज फॉर्म इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग ओनली, करेक्ट। ओके, सो अब ह्यूमन की बॉडी में क्या हो चुका है, उसके ऑलरेडी प्लास्मोडियम प्रेजेंट है, प्लास्मोडियम किस फॉर्म में प्रेजेंट है, अपने अभी गैमेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब अगर उसे कोई भी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट करती है उस इन्फेक्टेड पर्सन को, तो क्या होगा, वो जो गैमेट्स हैं, दैट इज मेल गैमेट एज वेल एज ये जो फीमेल गैमेट है, ये दोनों गैमेट क्या करेंगे, उस फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जैसे वो ब्लड सक करेगी तो ब्लड के साथ साथ ये गैमेट्स भी उसकी बॉडी में चले जाएंगे। अब गैमेटोसाइट कहाँ जा रहे हैं, ये फीमेल एनाफिलिस क्या कर रही है, यहाँ पे सक कर रही है, यहाँ पे ये ब्लड को सक कर रही है, तो इसकी बॉडी में क्या एंटर कर रहा है, इसकी इस फीमेल एनाफिलिस की बॉडी में एंटर कर रहा है क्या चीज़, गैमेट्स। कौन से, मेल गैमेट एज फीमेल गैमेट्स ऑफ प्लास्मोडियम, करेक्ट। अब वो जो गैमेट्स होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, इस फीमेल मॉस्किटो के गट में जाते हैं, और गट में क्या होता है, उसके फ्यूजन होता है, करेक्ट। तो देखो, फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट, फीमेल मॉस्किटो ने क्या किया, गैमेटोसाइट लिया विद ब्लड मिल्क, क्यों, ब्लड उसने सक किया, उसके साथ गैमेटोसाइट भी चले गए। अब वो जो गैमेटोसाइट है वो कहाँ पे जाते हैं,
वो गैमेटोसाइट उसके गट में जाते हैं। गट में क्या होता है, फ्यूजन होता है, करेक्ट। अब फ्यूजन अगर होगा, मेल गैमेट है फीमेल गैमेट है, अगर दोनों फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा, करेक्ट। अब ये जाइगोट कैसा होता है, ये अब ये बना कहाँ पे, जाइगोट कहाँ पे फॉर्म हुआ है, जाइगोट फॉर्म इन गट। किसकी गट में, गट ऑफ मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की गट में जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। अब ये जाइगोट कैसा हो जाता है, ये जाइगोट बिकम मोटाइल, ये मोटाइल हो जाता है। मोटाइल मतलब क्या होता है कि अब इसमें मूव करने की टेंडेंसी आ जाती है, ठीक है। तो ये जाइगोट मोटाइल हो जाता है, और जब इसके स्टमक में यहाँ पे गट में फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, अब ये जाइगोट मोटाइल हो गया, तो ये क्या होता है, स्विम करते करते इसकी सलाइवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाता है। और इसी मोटाइल जाइगोट को हम क्या बोलते हैं, दिस मोटाइल जाइगोट इज कॉल्ड एज स्पोरोजॉइड्स। तो स्पोरोजॉइड्स क्या होता है, बेसिकली ये जो मोटाइल जाइगोट्स होते हैं, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पोरोजॉइड। जो कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, फॉर्म कहाँ पे होते हैं, गट में, बट स्टोर कहाँ हो जाते हैं, सलेवरी ग्लैंड में, करेक्ट। अब ये जो सलेवरी ग्लैंड में मॉस्किटो के स्टोर हो चुके हैं, तो अब ये मॉस्किटो जाके किसी फ्रेश और हेल्दी ह्यूमन बींग को जाके बाइट करेगी, तो उसकी बॉडी में क्या करेगी, रिलीज कर देगी प्लाज्मोडियम को। किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में उसके सलेवरी ग्लैंड में स्टोर है, तो उसके सलेवरी ग्लैंड में किस फॉर्म में स्टोर है, वो स्पोरोजॉइड्स। इसीलिए बोलते हैं कि इन्फेक्शियस स्टेज क्या होती है प्लाज्मोडियम की, इन्फेक्शियस स्टेज इज स्पोरोजॉइड्स, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो आपके मेंशन किया गया है कि नेक्स्ट स्टेज क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन दी मॉस्किटो गट। तो आपसे पूछा था कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर, सो फर्टिलाइजेशन अकर्स इन दी मॉस्किटो की गट में होता है, करेक्ट, ओके। एंड देन उसके बाद क्या होता है, फिर दीज आर स्पोरोजॉइड सलेवरी ग्लैंड। अब इन्होंने देखो बताया नहीं आपको कि डेवलपमेंट का क्या मतलब, डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि जाइगोट हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया, कौन सा, मोटाइल जाइगोट फॉर्म हो गया। एंड ये मोटाइल जाइगोट कहाँ पे जाता है, स्विम करता है, और स्विम करते करते इस फीमेल एनाफिलस की सलेवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाता है, करेक्ट। तो आगे देखो आपको मेंशन, एनसीईआरटी में यही प्रॉब्लम है कि कुछ चीज़ एक्सप्लेन किया, कुछ चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया। तो क्या होता है, ये सलेवरी ग्लैंड में जाके, रिमेंबर कहाँ पे स्टोर होता है, सलेवरी ग्लैंड में जाके, किसकी सलेवरी ग्लैंड, ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो के सलेवरी ग्लैंड में जाके ये स्टोर जाता है, क्या चीज, स्पोरोजॉइड्स, करेक्ट। नाउ मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, तो कौन सी इन्फेक्टेड स्टेज, इन्फेक्टेड स्टेज, इन्फेक्टिव किसके लिए होगी, हम ह्यूमन के लिए, करेक्ट। तो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज दैट इज स्पोरोजॉइड एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलेवरी ग्लैंड, राइट। सो गट में क्या होता है, फ्यूजन होता है, वहाँ से माइग्रेट कर जाता है कहाँ पे, मॉस्किटो की सलेवरी ग्लैंड में। अब जब सलेवरी ग्लैंड में स्टोर हो चुका है, तो वो जब फिर अब ये जो मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, तो वहाँ पे रिलीज कर देगी किसको, प्लाज्मोडियम को, किस फॉर्म में, स्पोरोजॉइड्स की फॉर्म में। तो वही लिखा है, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन क्या है, अनदर हेल्दी ह्यूमन, स्पोरोजॉइड्स आर इंजेक्टेड विद द बाइट, करेक्ट। सो दिस इज द होल लाइफ साइकिल, कि पहले क्या होता है, पहले फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होती है, उसकी सलेवरी ग्लैंड में ऑलरेडी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइड्स। वो स्पोरोजॉइड क्या होती है, इन्फेक्शियस स्टेज होती है। इन्फेक्शियस स्टेज में क्या करता है, वो जो एंटर करता है हमारे ब्लड में, तो ब्लड के थ्रू कहाँ पे जाता है, हमारे लिवर में जाता है। लिवर में क्या होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसे वो मल्टीप्लाई करता है, कौन सा प्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल प्रोडक्शन। फिर क्या करता है, उसके बाद अपने नंबर को इंक्रीज करता है, नंबर को इंक्रीज करता है, सेल बर्स्ट हो जाते हैं। जब सेल बर्स्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोजोन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फीवर के लिए। उसके बाद फिर क्या होता है, देन दे प्रिपेयर फॉर दी देयर सेक्सुअल प्रोडक्शन। प्रिपरेशन क्या होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन की, गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन, एंड जो गैमेट्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर, लेकिन उसका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फीमेल मॉस्किटो की बॉडी के अंदर, राइट। एंड फीमेल मॉस्किटो की गट में होता है। फिर गट में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, वो मोटाइल हो जाता है। जो मोटाइल जाइगोट होता है वो जाके स्टोर हो जाता है किसमें, सलेवरी ग्लैंड में। एंड इस सलेवरी ग्लैंड में जो स्टोर फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड स्पोरोजॉइड्स, जो अगेन क्या करती है, इन्फेक्शन कॉज करती है, करेक्ट, ओके। अब इसको हम अब पढ़ते हैं, ये हमने रीड कर लिया, अब हम पढ़ते हैं कि पैरा में क्या लिखा है, करेक्ट। तो देखो क्या क्या लिखा है, प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजॉइड्स। तो पहली इंपॉर्टेंट लाइन क्या हो गई कि प्लाज्मोडियम जो होता है वो एंटर करता है ह्यूमन की बॉडी में। प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी किस फॉर्म में, स्पोरोजॉइड्स, स्पोरोजॉइड फॉर्म में एंटर करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, इन्फेक्शियस फॉर्म कौन सी होती है ह्यूमन बीइंग के लिए, दैट इज स्पोरोजॉइड्स। नाउ कैसे एंटर करता है, थ्रू दी बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस। रिमेंबर दिस नेम, फीमेल एनाफिलस रिस्पॉन्सिबल एंड इट एक्ट एज अ वेक्टर, करेक्ट। तो फीमेल एनाफिलस यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करती है, फीमेल एनाफिलस यहाँ पे वेक्टर की तरह बिहेव करती है, इट इज अ वेक्टर ओवर हियर, करेक्ट। नेक्स्ट क्या लिखा है, द पैरासाइट्स, पैरासाइट कौन है यहाँ पे, प्लाज्मोडियम, इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल। तो इनिशियल स्टेज में, इनिशियली वो कहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, लिवर सेल में। एंड उसके बाद देन अटैक, उसके बाद वो किसको अटैक करते हैं, आरबीसीज को, करेक्ट, रिजल्टिंग इन द रप्चर।
the rupture of RBC is associated with the release of toxic substance called as hemozoin. अब देखो जब RBC रप्चर होता है तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसका नाम क्या है, हीमोजोइन. सो दिस हीमोजोइन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, करेक्ट, हीमोजोइन, दिस इज इंपॉर्टेंट. कब होता है, जब RBC रप्चर हो जाता है तो उसे केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल का नाम क्या है, हीमोजोइन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रीअकरिंग एवरी 3 to 4 days. तो आपसे अगैन ये पूछा जाता है कि ये जो फीवर होता है वो कितने दिन में रिपीट होता है, तो 3 से 4 दिन में ये फीवर रिपीट होता है मलेरिया में, करेक्ट. नाउ व्हेन अ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, दीज पैरासाइट एंटर द मॉस्किटो बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट. जब वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी को बाइट करती है तो वो क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, किसकी बॉडी में, मॉस्किटो की बॉडी में. देन वहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट होता है, दैट वहाँ पे जाके क्या होता है, फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, वो मोटाइल होता है, स्पोरोजोइट्स बनता है, राइट. सो ये सारे डेवलपमेंट कहाँ पे होते हैं, फीमेल की बॉडी में, फीमेल एनाफिलस की बॉडी में. द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइट्स. तो स्पोरोजोइट्स बेसिकली फॉर्म कहाँ पे होते हैं, स्पोरोजोइट्स फॉर्म कहाँ पे होते हैं, इन मॉस्किटो की गट में ये फॉर्म होते हैं. दैट आर स्टोर्ड, और फॉर्म कहाँ पे होते हैं, मॉस्किटो की गट में, राइट. और स्टोर्ड कहाँ पे होते हैं, मॉस्किटो की सैलिवरी ग्लैंड में, करेक्ट. तो याद रखना फॉर्म कहाँ पे होते हैं और स्टोर कहाँ होते हैं. व्हेन दीज मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन, जब वो किसी ह्यूमन को बाइट करती है, द स्पोरोजोइट्स आर इंट्रोड्यूस इनटू हिज और हर बॉडी, thereby initiating the events mentioned above. It is interesting to note that the malaria parasite कौन है, that is plasmodium, करेक्ट. अभी जो मलेरिया पैरासाइट होता है इसको कितने की रिक्वायरमेंट होती है, कितने होस्ट रिक्वायरमेंट होते हैं, तो इसके 2 होस्ट होते हैं. कौन कौन सा, पहला ह्यूमन बींग होता है, दूसरा कौन सा होता है, ऑफकोर्स मॉस्किटो टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इज द वेक्टर दैट इज अ ट्रांसमिटिंग एजेंट टू. तो ये आपको याद रखना है कि जो प्लाज्मोडियम होता है मलेरियल पैरासाइट होता है, मलेरियल पैरासाइट, ओके. इसके कितने होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, इसको 2 होस्ट होते हैं. पहला होस्ट क्या होता है इसका, ह्यूमन, दूसरा कौन सा होता है, मॉस्किटो टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. फीमेल एनाफिलस है किसकी तरह बिहेव करती है, वेक्टर की तरह बिहेव करती है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रांसमिटिंग एजेंट, करेक्ट. जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो इन्फेक्शियस स्टेज होती है, वो कहाँ पे फॉर्म होती है, लुक ये इंपॉर्टेंट है कि ये मॉस्किटो के गट में फॉर्म होता है, और स्टोर कहाँ पे होता है, तो ये सैलिवरी ग्लैंड में स्टोर जाता है. सो ऑल दीज, और अगैन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो आपसे फ्रेम होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका, प्लाज्मोडियम का. ये कहाँ पे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, फ्यूजन, ठीक है. फ्यूजन किसका, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. तो ये फ्यूजन कहाँ पे होता है, सो दिस फ्यूजन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल एनाफिलस. तो ये फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो में होता है, करेक्ट. वेयर अगर मैं आपसे बोलूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो वो ह्यूमन की बॉडी में होता है, राइट. अगैन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कहाँ है, फीमेल एनाफिलस में, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होती है, प्रिपरेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब प्रिपरेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, दैट इज गैमेट का फॉर्मेशन. तो गैमेट का फॉर्मेशन का होता है ये ह्यूमन बींग में. तो याद रखना कि अगर आपसे क्वेश्चन आए कि प्रिपरेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तैयारी कहाँ होती है, ह्यूमन बींग में. क्यों, क्योंकि ह्यूमन बींग के रेड ब्लड सेल्स में गैमेट का फॉर्मेशन होता है. अगर आपसे पूछे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, वो कहाँ होता है, फीमेल एनाफिलस की बॉडी में, करेक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द मलेरिया विच इज कॉज्ड बाय पैथोजन, that is protozoan, and what's the name of that protozoan, that is plasmodium. So that's all for today. I hope you like this